Hello students, this is Apeksha Malik. I welcome you all in A. Rival's classes. As you know, on 27th March, CBSE Board FIT exam is there for class 10th. I hope you all have prepared well. तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सैम्पल पेपर विद स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम। आपके लिए क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स के लिए आपको FIT में कितना अटेम्प्ट करना है। So without wasting much time, we are coming to the sample paper. First of all, MCQs are given here. 5 MCQs will be there. 5 marks are there. Very easy MCQs are there. You can see 1 mark for each correct answer. We are coming to the second question directly. What is block? See, what is block? You have to only write the definition of the block. 1 mark for the correct answer. Discuss the purpose of HTTP briefly. HTTP हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है, that is hypertext transfer protocol. Tamanna needs to store. This one is the practical question. You need to think about that one. It is asking here storing and transporting data. हमारे पास जो XML, हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, HTML का या XML का। तो हमारे पास जो स्टोरिंग के लिए XML यूज़ होते हैं, HTML जो है वो डिस्प्लेइंग के लिए यूज़ होता है, डिस्प्लेइंग द डाटा ऑन वेब पेज. Name the protocol which is used for uploading and downloading data from remote site. FTP, file transfer protocol. But write the full form. What is the full form of URL? So every time it is being asked that write the full form of URL or any other thing. एक full form तो आपसे पूछी ही जाती है. What is the purpose of web browser? Very easy question. You have to write the definition only. Then it is asking here give the name of any 2 popular web browser. किसी भी 2 web browser का नाम लिख लो. Half mark you will get for each web browser. Explain the term digital divide. You have to write the definition only and you will get the 2 marks. Direct answer लिखने हैं, answers को ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है. Cell padding and cell spacing with respect to the table in HTML. Generally students इसमें confuse हो जाते हैं कि cell padding क्या होता है, cell spacing क्या होता है. बहुत easy तरीका है इसको learn करने का. Cell spacing between the cells, नाम में ही पता चल रहा है, spacing between the cells, cell padding. Cell, the distance between the cell wall and the text written in that cell. Define container and empty tags in HTML. Everyone knows about that. The container tag जिसकी starting भी होती है, closing tag भी जिसमें होता है, like this one. अगर empty tag की हम बात करते हैं तो इसकी opening tag होता है, compulsory नहीं होता है इसका closing tag होना. What is the primary key in the table? What is the need of a database? Discuss briefly. जितना भी आप लिखेंगे 2 marks you will get for each answer. Differentiate between OL and UL tag with suitable example. जब भी आपसे इसमें FIT के पेपर में example पूछा जाए, you must write that one क्योंकि इसके marks आपको specifically मिलेंगे. OL tag ordered list, UL tag unordered list. Ordered list क्या होती है, like 1 2 3 4. जब भी आप कोई लिस्ट बनाते हैं अगर उसे नंबरिंग प्रोवाइड करते हैं then 1 2 3 4 that is the OL tag. अगर आप नंबरिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं, कोई बुलेट बनाते हैं, स्केयर बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, then your unordered list will be there. Here is the HTML code and output. इसी तरीके से आपको भी लिख कर आना है, कोड भी लिखना है, उसका आउटपुट भी शो करना है. Then only you will get the marks. एक एग्जाम्पल के OL के एग्जाम्पल के लिए 1 मार्क और UL के एग्जाम्पल के लिए 1 मार्क. What is the purpose of IMG tag? IMG tag is used for the images. अगर आप image को insert करना चाहते हैं, you have to use IMG tag. IMG tag you have to mention any 2 attributes. 2 attribute use करने हैं, कोई भी use करिए. SRC main attribute है, alt भी use कर सकते हैं. उसके अलावा height भी use कर सकते हैं, width भी use कर सकते हैं. आप किसी को भी यहाँ पे explain कर सकते हैं. What is the e-learning? E-learning अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप ई लर्निंग कर रहे हैं, आप घर बैठे वीडियो से पढ़ रहे हैं, आपकी ई लर्निंग हो रही है, दैट इज द ई लर्निंग. मेंशन एनी 2 मेन बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग. सो इट इज़ द टाइम सेवर. आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आप घर बैठे प्रिपरेशन करते हो, लेस एक्सपेंसिव होता है. सो दीज आर द बेनिफिट्स. डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रैकर एंड हैकर बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रैकर और हैकर लास्ट टाइम के पेपर में भी पूछा गया था कि क्रैकर और हैकर में क्या डिफरेंस है.
हैकर क्या होता है, दोनों ही स्किल्ड कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं, दोनों ही स्किल्ड कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन हैकर क्या करता है, अपनी टेक्निकल नॉलेज को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करता है, जबकि क्रैकर रूल्स को ब्रेक करता है, किसी भी डाटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी इंपॉर्टेंट डाटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये काम होता है क्रैकर का। नाउ सी द सेकंड ऑप्शनल क्वेश्चन इज देयर। Ishan, a trainee in a multinational bank, has got his first official computer with internet facility in his office. तो उसको explain करना, explain him about malware, its type and its precautionary measure he should be taken for information security। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मालवेयर की डेफिनेशन देंगे। मालवेयर क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है विद मैलिशियस इंटेंशन। तो इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्सेस। देन आपको क्या उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कि आप सबसे पहले तो अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखें, अपने सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करते रहें, पीसी को स्कैन करते रहें, किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें, अवॉइड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। आपको 2 मेंशन किए हैं, यहाँ पे 4 बताए हुए हैं। राइट दिस इज द मेन क्वेश्चन। नाउ वी आर कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो पजल हो जाते हैं जब HTML कोड लिखने की बारी आती है। राइट द HTML कोड टू जनरेट फॉर द फॉलोइंग वेब पेज विद द गिवन बिलो स्पेसिफिकेशन। नाउ वी आर रीडिंग द स्पेसिफिकेशन केयरफुली। bordered table should have background color in pink. Table's header row with heading, this one, should spread all over 4 cells. Say, after heading row, first cell of next row should spread over 5 rows. जितना ये बता रहा है आप रीड करते जाओ, आपके माइंड में क्लिक करेंगे कौन से टैग आपको यूज करने हैं और कौन से एट्रीब्यूट आपको यूज करने हैं। यहीं पे एक बार करके देख सकते हैं। देखो, बॉर्डर टेबल बनाने हैं तो ऑब्वियसली आपको टेबल का टैग यूज करना पड़ेगा। टेबल का टैग क्या होता है, वो टेबल क्लोज, ये टैग प्रॉपरली यूज होगा ही होगा। उसके बाद आते टेबल हेडर रो भी लेनी है। उसके बाद हेडर रो की बात आती है, तो हेडर रो जो आप यूज करेंगे, रो के लिए आप यूज करेंगे TR टैग, हेडर के लिए आप यूज करेंगे, जब आप हेडिंग की बात करते हो तो हेडर के लिए आप क्या यूज करेंगे, TH। उसके बाद आता है सेट द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल। अब वही बात आती है, एक पहले भी क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग जो होती है वो सेल वॉल और सेल कंटेंट के बीच में स्पेस देती है। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट यूज होगा वो होगा सेल पैडिंग, और जबकि यहाँ पे द सेट द स्पेस बिटवीन द सेल्स, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, सेल स्पेसिंग। रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। At the bottom of the page, a link to next page is there, which is linked to another web page next .html। अब ये देखो, a link to next page, एक्सटर्नल लिंकिंग यहाँ यूज हो रही है। तो एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए आप क्या यूज करते हैं, href, जो भी आपको टारगेट लेना है वो टारगेट, नेक्स्ट वेब पेज, क्लोज करो, लिंक बनाओ, ए को क्लोज कर दो, एंकर टैग, ए स्टैंड्स फॉर एंकर, तो एंकर टैग को क्लोज कर दो। सी, नाउ कमिंग टू आर एग्जैक्ट, कि ये जो आपको आउटपुट गिवन है, एक आपको इमेज जो आपको गिवन है HTML वेब पेज, उसका हमें कोड लिखना है। कोड लिखने से सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। HTML में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले जो आपको लिखना है वो HTML तो लिखना ही लिखना है, द मेन टैग फॉर HTML वेब पेज। अगर आप ये नहीं लिखेंगे, HTML नहीं लिखेंगे, तो HTML वेब पेज ही स्टार्ट नहीं होगा। एंड में इसको क्लोज करना है। HTML वेब पेज के पास हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, एक हेड टैग होता है, एक बॉडी टैग होता है। सी, बॉडी टैग क्लोज, 2 पार्ट्स होते हैं, हेडर पोर्शन, बॉडी पोर्शन, ये दोनों ही आपको मेंशन करने हैं। हेडर पोर्शन में जो हमारा यूज होता है सिर्फ और सिर्फ टाइटल यूज होता है। तो वी आर कमिंग टू द कोड हियर। सी, कि यहाँ पे टाइटल ऑलरेडी लिखा हुआ है, टाइटल उसने दे दिया, टाइटल को क्लोज कर दिया। तो यहाँ तक का पोर्शन हमारा खत्म हो गया। तब हमारा बॉडी पोर्शन स्टार्ट हो रहा है।
बॉडी पोर्शन में अब आप इसको देखिए वेब पेज को। ये वेब पेज जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है आपकी इतना पार्ट जिसमें आपकी टेबल बनी हुई है, और एक पार्ट है इतना सा पार्ट जहां पे आपका जो है सेकेंड पार्ट जो हमारा है वो है एक लिंक टू एक्सटर्नल वेब पेज। सी तो हमारे यहाँ पे बॉडी में भी दो ही पार्ट्स रहेंगे। दो पार्ट्स क्या, एक हमारा रहेगा टेबल और दूसरा हमारा क्या रहेगा, हमारा रहेगा AHREF। तो दोनों के लिए एक टेबल बनानी है, एक लिंक बनाना है। टेबल जब हम बनाएंगे तो हमें क्लियरली वहाँ पे मेंशन है, इंस्ट्रक्शन में हमारे पास मेंशन है, यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन में हमें मेंशन है कि बॉर्डर टेबल लेनी है, यानी कि आपको टेबल टैग के साथ में बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। उसके बाद इसने बोला है कि बैकग्राउंड कलर इन पिंक। जो इंस्ट्रक्शन में यहाँ गिवन है वो आपके वेब पेज में जब आप कोड लिख रहे हो तो वो इंक्लूड होना चाहिए। मार्क्स उसी के ही मिलेंगे, आप एक्स्ट्रा कुछ भी लिख लो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। बैकग्राउंड कलर के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है BG कलर। बहुत इजी है, BG कलर सबने यूज कर भी रखा होगा। बॉर्डर के साथ में दो और एट्रीब्यूट हमारे पास हैं, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। तो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग भी आपके इंस्ट्रक्शन में पूछी गई थी, हमने अभी बताया था, 4th इंस्ट्रक्शन है कि इसके लिए हमारे पास सेल पैडिंग यूज होगा, और जब स्पेस बिटवीन द सेल्स यूज की गई है तो हमारे पास सेल स्पेसिंग यूज होगा। इनको भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। दोनों के लिए हमारे पास 1 मार्क मिलेगा। अगर हम ये यूज करते हैं तो हमें एक 1 मार्क और मिलेगा, तो 2 मार्क्स तो हमारे यहीं पे बन गए हैं। नाउ नेक्स्ट वन, अब हमारे पास क्या है कि हमें एक टेबल क्रिएट करनी है। टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कितनी रोज होंगी, 6। तो 6 टाइम ही हम TR को ओपन करेंगे, TR को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द इन द फर्स्ट टेबल रो में जो हमारी हेडिंग है, हेडिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो हेडिंग के लिए हम यूज करेंगे TR। कॉल स्पैन यहाँ यूज किया गया है, उसने क्लियरली इंस्ट्रक्शन में बोला है कि 4 सेल्स को ज्वाइन होना चाहिए। 4 सेल को हम जब ज्वाइन करते हैं तो हमारे यूज होता है कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। उसके बाद हमने इसे कंप्लीट कर दिया, क्लोज कर दिया। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड रो में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास आता है तो फर्स्ट सेल है वो हमारी 5 रोज को मिलके बनी है, तो रो स्पैन विल बी यूज्ड हियर। सी कॉल स्पैन इज यूज्ड हियर, रो स्पैन इज यूज्ड हियर। बहुत बार ये क्वेश्चन CBSE ने पूछा है, हर एग्जाम में लगभग पूछ ही लिया जाता है कि इनके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो कॉल स्पैन में कॉलम्स को ज्वाइन होता है, कॉलम्स की सेल्स ज्वाइन होती हैं, जबकि रो स्पैन में रोज की सेल्स ज्वाइन होती हैं। इमेज आपको इंसर्ट करना था, इमेज आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वन। हमें फर्स्ट उसका डाटा यूज करना है। यहाँ पे इसके लिए भी TD यूज होगा, टेबल्स डाटा टैग यूज होगा, इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी अलग से यूज होगा। सी दिस वन, सीरियल नंबर, इनकम रेंज, टैक्स परसेंट, डन। Now second row is closed here. Now as it is, this one is for the third row, then up to here it is a 4th row, 5th row, and now the 6th row. Now the next one, table is closed here, one time will be closed. लिंक इज गिवन हेयर। मैंने पहले ही बताया था कि आपके जो वेब पेज है उसके 2 पार्ट हैं, एक हमारी टेबल है और दूसरा हमारा लिंक है। ये लिंक हमारा एक्सटर्नल लिंक है, एक्सटर्नल लिंक हमारे इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। बॉडी विल बी क्लोज्ड, HTML विल बी क्लोज्ड। सी योर मार्किंग स्कीम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन उससे पूछी थी, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली। उसके बाद हमारा TH में मैं आपको इंस्ट्रक्शन भी साथ के साथ दिखा दूं। सी टेबल हेडेड रो, उसने बोला था कि यहाँ पे 4 सेल्स तक कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने कंप्लीट यूज कर दिया यू विल गेट द 1 मार्क। देन अगेन सी नेक्स्ट उसने बोला अगर ये कंप्लीट कर लिया यू विल गेट द 1 मार्क। सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग यूज कर लिया यू विल गेट द 1 मार्क। A टैग का करेक्ट यूज कर दिया यू विल गेट द 1 मार्क। नेक्स्ट वन, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन आउट ऑफ द 2। दिस वन इज आवर लास्ट क्वेश्चन। इन दोनों में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको कोड गिवन है, इसे देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किस चीज़ का कोड है, HTML का कोड है या XML का कोड है। तो इसे देखते ही हमें पता चल रहा है, ना तो यहाँ पे HTML कहीं स्टार्ट हो रहा है, ना क्लोज हो रहा है, ना हेड है, ना बॉडी है, कुछ नहीं है। दिस वन इज द XML कोड,
ठीक है, जो ये हमारे टैग यूज हो रहे हैं ये भी बिल्ट इन टैग नहीं है, ये हमारे खुद के यूजर डिफाइंड टैग हैं। यूजर डिफाइंड टैग सिर्फ हमारे एक्सएमएल में होते हैं, इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन टैग यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट कौन सा होगा ना सी, रूट एलिमेंट कौन सा होगा जो सिर्फ एक ही बार यूज किया होगा, स्टार्टिंग में ओपन होगा और लास्ट में क्लोज होगा। सी, कंपनी, दिस वन इज योर रूट एलिमेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, मेंशन एनी टू चाइल्ड एलिमेंट। किन्हीं दो चाइल्ड एलिमेंट का आप नाम लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो तो आप नेम लिख दो, आप डी पी टी लिख दो, दोनों हमारे चाइल्ड एलिमेंट हैं। उसके बाद आते हैं मेंशन एनी टू एट्रीब्यूट। अभी हमने ऊपर बताया था टैग, चाइल्ड एलिमेंट, अब हम एट्रीब्यूट बता रहे हैं। तो एट्रीब्यूट के लिए क्या यूज हो रहा है, ये हमारा टैग है जो हमने बनाया है, ये उसके साथ में एट्रीब्यूट है, दिस वन इज द एट्रीब्यूट। अगेन सी, दिस वन इज ऑल्सो द एट्रीब्यूट। तो इन दोनों का ही नाम आपको इसमें लिखना है। एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट कैन हैव मोर देन वन रूट। ऐसे कोई भी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट नहीं होता जहां पे मोर देन वन रूट एलिमेंट हो, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। से ओनली वन रूट एलिमेंट मस्ट विल बी देयर। नेक्स्ट, ऑप्शनल, Vani, a class 10th student has recently completed her HTML course and just started learning XML. Help her in the following. Practical question is there. Mention her any one difference between the HTML and XML. HTML और XML में क्या डिफरेंस है, पहले भी बताया था, HTML डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, जबकि XML क्या है, स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टिंग द डाटा के लिए यूज हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, she has been told that all major browsers have a built-in XML parser to access and manipulate XML. Is this statement right or wrong? Exactly, this statement is right. क्या आप लोग सभी वेब ब्राउजर यूज करते हैं, कभी भी कोई हम लोग XML पार्सर को अलग से डाउनलोड नहीं करते, दैट मीन्स कि वो उसी में ही बिल्ट इन होता है। एक्सप्लेन हर द पर्पज ऑफ कमेंट्स इन XML डॉक्यूमेंट। कमेंट जो होता है, इसका क्वेश्चन इसमें पूछा गया, अलग से भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई वी आर यूजिंग कमेंट इन XML और HTML। XML और HTML जो होता है वो नोट्स बनाने के लिए यूज होता है। ये किसके लिए यूज होता है, ये जनरली जो होता है प्रोग्रामर के लिए यूज होता है, ताकि उससे अपने ही नोट्स जो हैं कहीं पे अगर उसने लिखे हैं तो वो उसे समझ आ जाए। इसका वेब पेज में ये डिस्प्ले कभी भी नहीं होते। अब इनको लिखने का तरीका क्या है, इनका सिंटेक्स क्या है, तो इसका सिंटेक्स ये है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हर द मीनिंग ऑफ वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट। वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है, वेल फॉर्म्ड का मतलब होता है वो XML डॉक्यूमेंट जिसके पास करेक्ट सिंटेक्स होगा, ठीक है, वही जो है वो वेल फॉर्म्ड डॉक्यूमेंट रहेगा। फॉर एवरी आंसर यू विल गेट 1 मार्क। सो ये था हमारा सैम्पल पेपर विद स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि परसों आपको कितना अटेम्प्ट करके आना है। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपकी हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।